Greetings to all. Before going to say something, first of all, I would like to introduce myself. This is Dr. Puran Singhati, Shahid Durgamal Government PG College, Dobiwala, Dehradun, Uttarakhand, India. My topic is radicals. In order to maintain sustainable development, we must know radicals because radicals are very important or peculiar substances that are generally found in atmosphere, means in our environment or soil or water. So now radicals. So first, uh, uh, before to understand radicals, one must know neutralization. Neutralization are reactions. Neutralization reactions. Actually, neutralization reactions means we know when acid and base react together resulting in the formation of salt and water. This process is known as neutralization reaction. For example, suppose HCl and a base, anyway sodium hydroxide, hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide results in the formation of sodium chloride and water. This is acid and this one is base, this is salt. This is salt. Now this salt contains two parts, one is sodium ion and second one is chloride. Now this anion comes from NaOH, so it is known as basic radical because we are getting it from base. Cl ion, this comes from acid HCl, so it is known as acidic radical. So this means there are two types of radicals, acidic radicals and basic radicals. First one is acid radical, second one is basic radicals. Now finally it might have been concluded that all negative charges are called acid radicals and all positive charges are called basic radicals. It means all negative charges are called acidic radicals and all positive charges are called basic radicals. It has to be noted point. So it means now what are radicals? So radicals are those substances which contains at least either a +1, +2, +3 or -1, -2, -3 or -4 or +4 charges. These are the radicals. Okay, it may be anything. For example, I say sodium ion, example I say chloride ion, and for example nitrate ion, for example sulfate ion, or similarly for example borate ion or cadmium ion or arsenic ion, As3 plus, Cd plus and antimony 3 plus. Positive charges are called base radical, negative are acid. So these are the radicals. So this was the definition of radicals. And so we can say there are two types of radicals, acid radical and base radical. So simply the part of salt which is obtained from acid known as acid radical, the part of salt which is obtained from base radicals. Okay. Now I now the next I'm going to make a list of acidic radicals. List of acidic radicals. Okay. List of acidic radicals. Now acid radicals. First, I will write name of radical, then formula of radical, and then group reagent. Actually, reagent. What are reagent? Reagent are those substances which are used to detect any another, whether it is known substance or unknown substance. With the help of this reagent, we can analyze other substance. So now here name of group. Name of group. Now, for example, first group, there are 5 radicals in it. Carbonate, formula is CO3 2 minus. Similarly, acetate, ACTAT, acetate, CS3 CO negative, and acid carbonate, acetate, and sulfide, PHID, ide, S2 minus, and sulfite, HCl, PHID, SO3 2 minus, and the last one is nitrite, NITRITE, NO2 1 minus. So there are 5 radicals. There are 5, 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, so this is the group number first. There are 5 radicals. And group reagent, for example, group reagent for whole group means for first group, we can use either dilute HCl, dilute hydrochloric acid, or dilute sulfuric acid H2SO4. Okay, now this is the first group. Similarly, now second group. In second group, there were 5 radicals first group, and second group there will be 4 radicals. Name of radicals: chloride, CHLORID, chloride ion, Cl minus. Similarly, bromide ion,
Br negative 1 negative, and iodide ion I 1 negative, and nitrate ion. Nitrate ion, its formula is NO3 1 minus. Now the group reagent concentrate H2SO4 or concentrate HCl. Okay, it was same group, 4 radicals. Now third group. Now third group we have name of radical sulfate ion or sulfate radical. SULPHAT SO4 2 minus. Group reagent dilute HCl or dilute HNO3 nitric acid, dilute hydrochloric acid or dilute nitric acid plus barium chloride. Because if you add nitric acid or dilute barium chloride, we will get white precipitate of barium sulfate in this case. So it means sulfate ion is present. ठीक है, ये जो है इस प्रकार से इसका एक ग्रुप होता है, उसका टेस्ट होता है सल्फेट आयन का। और नाउ अगला जो हमारा होगा फोर्थ वन इज फ्लोराइड आयन FLURIDE, फ्लोराइड आयन F1 minus, and oxalate OXALAT, oxalate ion C2O4 2 minus, and similarly borate ion BO3 3 valency, and phosphate PHOS PHAT, phosphate ion PO4 3 negative। ये सारे ये 4 रेडिकल हैं। फ्लोराइड में भी हम इसमें वी यूज कंसंट्रेट H2SO4 और C का यूज करते हैं SiO2। सिमिलरली ऑक्सलेट में इसमें भी हम कंसंट्रेट H2SO4 यूज करते हैं, और बोरेट में हम इसमें भी हम कंसंट्रेट H2SO4 यूज करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 देन वी ऐड एथिल अल्कोहल। ठीक है, बोरेट में ऐड करते हैं, इसमें एक ग्रीन कलर की फ्लेम बनती है। इन केस ऑफ फॉस्फेट वी यूज कंसंट्रेट H2SO4 प्लस अमोनियम मॉलिब्डेनम, NH4 होल ट्वाइस .12 MOO4 ये अमोनियम मॉलिब्डेनम इसमें ऐड करते हैं, तो क्लियर रंग का इसमें पीपीटी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से लिस्ट ऑफ ये एसिड रेडिकल्स हैं। और इसके बाद आगे चलते हैं, लिस्ट ऑफ एसिड रेडिकल्स के बाद आगे चलते हैं लिस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स में इसमें 0 से 6 ग्रुप हैं। इसमें भी सबसे पहले नेम ऑफ द ग्रुप, देन नेम ऑफ रेडिकल, देन फॉर्मूला ऑफ रेडिकल, इसमें फॉर्मूला आएगा, देन ग्रुप रिएजेंट, G स्टैंड फॉर ग्रुप रिएजेंट्स। इसमें हम ये लेते हैं, इसमें हम 0 से 6 ग्रुप बनाएंगे। इसमें 0 ग्रुप, अब 0 ग्रुप में जैसे नेम होता है रेडिकल अमोनियम EM, जिसमें EM होता है वो प्लस ही होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है ना, प्लस मैग्नीशियम प्लस, तो अमोनियम आयन NH4+1, एंड ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट एंटीबायोटिक जिसमें यूज किया जाता है, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद फर्स्ट ग्रुप आता है, फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट 0 ग्रुप के बाद इसमें फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास होता है सिल्वर आयन, और ये होता है इसके बाद लेड आयन और मरकरी, मर्क्यूरस। इसका फॉर्मूला होगा, Ag+1, लेड होगा Pb+2 और मर्क्यूरस होगा Ag2+2। इसमें 3 रेडिकल होते हैं, और इसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो डाइल्यूट HCl होता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन वी हैव सेकंड ग्रुप में भी इसमें 2 होते हैं, सेकंड ए होगा और सेकंड बी होगा। सेकंड ए में 5 रेडिकल होते हैं, इसमें आपका लेड होगा, फिर से लेड होगा, और इसके बाद इसमें मरकरी होता है, लेड मरकरी। उसके बाद फिर इसमें बिस्मथ होता है, BISMUTH बिस्मथ, और फिर होता है इसमें होता है कैडमियम, इसमें कैडमियम होता है, और इसमें लेड मरकरी बिस्मथ कैडमियम, और होगा कॉपर COPPR, 5 रेडिकल होते हैं। फिर अगला होता है बी में होते हैं आर्सेनिक और एंटीमनी, और इसमें फिर स्टेनस होता है STANNOUS स्टेनस, फिर होता है स्टेनिक STANNIC स्टेनिक। तो 4 रेडिकल होते हैं। सेकेंड ए में 5, 1 2 3 4 5, और इसमें 1 2 3 और 4। लेड होगा, इसकी वैलेंसी Pb2+, मरकरी होगा तो Hg2+, बिस्मथ होगा तो Bi वैलेंसी 3, कैडमियम है Cd2+, कॉपर है Cu2+, आर्सेनिक है As3+, एंटीमनी है ये Sb होता है, एंटीमनी होता है Sb और 3+, और जो स्टेनस होता है अगर आप यहाँ देखेंगे स्टेनस का यहाँ SN कम वाले की वैलेंसी 2, SN+2 कम की स्टेनिक, इसकी जो है स्टेनिक SN, इसकी 4 वैलेंसी होती है ये। तो सेकंड ए और सेकंड बी में जो ग्रुप रिएजेंट होता है इसमें क्या करते हैं, H2S पास करते हैं, H2S पास इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में H2S पास करते हैं सेकंड ग्रुप में। इसके बाद हमारा आता है, हम चलेंगे इसके बाद थर्ड ग्रुप,
इसके बाद हम चलेंगे थर्ड ग्रुप में 3 रेडिकल होते हैं, आयरन और एल्यूमिनियम, AluMinium, आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम होता है। आयरन Fe3+, एल्यूमिनियम Al, बैलेंसी बहुत जोड़ी होते हैं, क्रोमियम 3+। ये ग्रुप रिएजेंट अगर हम देखेंगे तो ये थर्ड ग्रुप है। थर्ड ग्रुप में हम लेते हैं अमोनियम क्लोराइड और प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ये ग्रुप रिएजेंट होते हैं थर्ड ग्रुप। इसके बाद आता है फोर्थ ग्रुप में 4 रेडिकल हैं, एक निकिल है, निकिल कोबाल्ट मैग्नीज, MaNGaNe, निकिल कोबाल्ट मैग्नीज और जिंक। तो निकिल ये होता है Ni2+, कोबाल्ट होता है CO2+, मैग्नीज होता है Mn2+, जिंक होता है Zn2+। और ये फोर्थ था ग्रुप में इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, प्लस H2S गैस पास करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है एक किप्स एपेटस होता है, KIPPS, किप्स एपेटस, इसमें बनाई जाती है, APPRETS, किप्स एपेटस में बनाई जाती है ये H2S गैस। इसका भी फॉर्मूला होता है आयरन सल्फाइड लेते हैं और प्लस H2SO4 लेते हैं डाइल्यूट, है ना, आयरन सल्फाइड, तो इससे H2S गैस बनेगी और प्लस ये FeSO4 ये बन जाएगा, ये ठीक है। तो इस प्रकार से फोर्थ ग्रुप हो गया। उसके बाद अब 2 ग्रुप और हैं, एक फिफ्थ ग्रुप और सिक्स्थ ग्रुप। फिफ्थ ग्रुप अगर देखेंगे तो फिफ्थ ग्रुप में इसमें एक होता है बेरियम, BaRium, बेरियम, स्ट्रोंशियम, STRONTIUM, बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम। बेरियम Ba2+, स्ट्रोंशियम होता है Sr2+ और कैल्शियम होता है Cu2+। और इसका जो फिफ्थ ग्रुप में रिएजेंट है इसमें लेते हैं अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम कार्बोनेट, NH4 होल ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट लेते हैं। बाद में जब इसमें ऐड करते हैं तो इसमें बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तीनों का जो है वो YPP प्राप्त होता है। इसके बाद होता है सिक्स्थ ग्रुप, इसमें एक ही रेडिकल है मैग्नीशियम, ये Mg2+, और इसमें लेते हैं हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस डाइसोडियम Na2HPO4, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है ये मैग्नीशियम रेडिकल जो है ये टोटल सिक्स्थ ग्रुप है, और इसमें जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बनता है जिसका YPP प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के ये हमारी लिस्ट ऑफ एसिड रेडिकल्स हैं, ये बेसिक रेडिकल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फॉर एग्जांपल इन ऑर्डर टू गेटिंग प्योर वाटर, अगर हमको प्योर वाटर चाहिए तो प्योर वाटर प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन पोटेबल वाटर, पीने वाला पानी को मेंटेन करना है, तो उसमें जितने भी ये रेडिकल्स हैं, है ना, जितने भी आयंस हैं और एसिड बेसिक मेंटेन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल है टू मेंटेन for the sustainable development of our environment, water, soil, atmosphere. जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर की बात करूँ, वाटर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ वाटर, इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ वाटर की अगर बात करें, पानी की बात करें, तो कितना इसमें रेडिकल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्लोराइड आयन है, ये जो है इट शुड बी 250 मिलीग्राम पर लीटर, इतना मेंटेन होना चाहिए, 250 मिलीग्राम। और सल्फेट आयन है, ये सारे तमाम नेगेटिव वाले जो हैं ये एनायन रेडिकल कहलाते हैं, और पॉजिटिव वाले बेसिक और कैटायनिक एनायन रेडिकल हुए। SO2 है, ये 400 मिलीग्राम पर लीटर, इतना वाटर मेंटेन होना चाहिए। और अगर हम नाइट्रेट आयन कहें NO3 ये आपका 20 मिलीग्राम पर लीटर मेंटेन होना चाहिए। और इसी प्रकार अगर हम आयरन की बात करें Fe2+, ये हमारा 3.0 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए मेंटेन। और यदि हम फ्लोराइड आयन के F नेगेटिव तो करीब 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, इतना ही मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि और जनरली फ्लोराइड आयन जो है वो करीब 0.1 मिलीग्राम पर लीटर मेंटेन किया जाता है वाटर में। अदरवाइज क्या होता है कि जो अदरवाइज डिकलरेशन ऑफ एनामेल टेक्स प्लेस, तो इनामेल जो है उसका कलर निकल जाता है और एक डिजीज हो जाती है जिसको फ्लोरोसिस कहते हैं, FLUOROSIS। तो 0 इतना मेंटेन करना होता है फ्लोराइड है। और देन फ्लोराइड एंड सिमिलरली लेड आयन, अगर लेड आयन है वाटर में ये करीब 0.1 मिलीग्राम पर लीटर इतना मेंटेन होना चाहिए। और यदि हम मरकरी की बात करें, मरकरी फॉर्म में होता है, और इसको मेंटेन करें तो इट शुड बी मरकरी मेंटेन होना चाहिए आपका 0.001 मिलीग्राम पर लीटर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड वाटर। एंड सिमिलरली लेड, मरकरी, इफ आई से आर्सेनिक 3+, it should be 0.01 milligram per liter arsenic. And then for example arsenic copper, it should be 0.05 milligram per liter, इतना ये होना चाहिए। और अगर ये आर्सेनिक है, लेड है, कॉपर है, और अगर हम कैडमियम कहें, कैडमियम की बात करें तो कैडमियम भी 0.05 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन ऑर्डर टू मेंटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये जो रेडिकल्स हैं ये बहुत जरूरी होते हैं।
ताकि पानी में मेंटेन हो और हमारा जो स्वास्थ्य हो वो ठीक रहे, हम स्वस्थ रहें. So thank you very much. It was all about radicals, especially to maintain sustainable development. Thank you very much.